Okay, so first we will learn differentiation. Okay, so have you heard? So this is basically comes under chapter called calculus. So calculus are of two types. One is derivatives or differentiation, and another is called integration. Both are opposite to each other. Means if you do, if something is there, if you do the differentiation of this, whatever you get, if you integrate it, you will get back this. Understood? Matlab, if you have some, let's say something is there, if you differentiate it, you will get something. Let's say this one. Now if you integrate this one, you will again get back this one. Understood? So integration is the opposite of differentiation. Clear? Clear? So differentiation and integration are opposite of each other. Fine? Okay. So going ahead with the first thing we'll do is we'll learn about derivatives. So basically what we do, we try to understand, to learn differentiation, we'll try to understand what is slope. Let's say I have a graph. This graph is between y and x. So this plot is basically showing it's basically a straight line equation, which is y equal to mx plus c, where m is the slope. Let's say this graph is y equal to x plus 1. Okay, so this is a straight line graph. For every value of x, you have a value of y. Okay, so if I want to find out the slope, how do I find out? What I can take, this is a straight line, so the slope remains same everywhere. Here, at each point, everywhere, slope remains same. What you can do, you can take this point, let's say this is y1, this is x1, and you take another point is y2 and x2. So what is the slope of this graph? The slope of this line will be y2 minus x2, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is the slope of this plot. And the slope, what the slope gives? Slope gives how does the y changes with respect to x. How does the y changes with respect to x? Okay, how fast the y changes with respect to x. So if I have a graph between displacement and time, then the slope of this graph will be what? ds by dt. We say its velocity. So the slope of the displacement time graph is velocity. Understood? Clear, both of you? Yes, sir. Okay, now why this slope is constant everywhere at every point of the line, so no problem. For a straight line graph there is no issues. But let's say you have a graph, you have a plot wherein your graph is something like this. This is not a straight line graph. How do you do it? There the concept of instantaneous rate or rate of change, okay, at a point comes into picture, because at every point the rate is different. And to understand that slope, you also have one more way where you can find out the angle which it makes with this axis. The line, what angle it makes with respect to axis. Let's say this makes angle theta. Then your tan theta is actually a slope. So you can say tan theta or y2 minus y1 by x2 minus x1. This is slope. Okay, but here you see this is not a line. So for this we need to find tangent. So let's say this is your first tangent. This is your second tangent. You see, at every point, at this point the angle is here. At this point your angle is here. So the angle changes because at every point your tangent differs.
So since the tangent differs, so what is the angle the tangent is making with respect to x-axis also changes. So here your slope changes at every point. Understood? Understood? Devika, clear? Yes, sir. So here you cannot say that slope is constant because your slope is changing, because this is not a straight line, this is a curved line. So for a circle, at every point the tangent is different. So here we can easily find the slope, but for this type of graphs we cannot find easily. So here we only talk about rate at one point. How instant, it's called instantaneous rate. So if I have a vehicle moving like this, s and t, then here we can talk about instantaneous velocity, ds by dt, because at each point the velocity is different, velocity is increasing. Understood? So if I say that there are two graphs, if I say at this point, what is the slope? The slope is this one, theta. So tan theta. But at this point, what is the tangent? The tangent is something like this. So now tell me, here it is theta 1, here is theta 2. So tell me, which is bigger? This, here the slope is bigger, or here the slope is bigger? You tell me. First. First the theta is small, no? So obviously tan theta 2 is bigger. Theta 2 is greater than theta 1. So tan theta 2 is greater than tan theta 1. So the slope at this point is greater than this point. Understood? Slope at this point is greater than this point. सीधी समझ में आया? हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपका ये बढ़ता जाएगा, आपका स्लोप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. इसका स्लोप क्या होगा? इसका 90 डिग्री है, क्या होगा? 90 डिग्री। क्या होगा? स्लोप क्या होगा? tan थीटा. तो tan 90, tan 90 का वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट. हाँ। तो यहां पर स्लोप क्या है? इनफाइनाइट है. ठीक है? अगर मैं बोलूंगा ये मेरा स्लोप क्या है, इसका क्या रहेगा स्लोप? ये एंगल लोगे, ऑलवेज आप ये वाला एंगल, ये वाला नहीं लेना. देखो ग्राफ ऐसा है, ये वाला ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये वाला एंगल लोगे. तो यहां पर देखो, यहां पर स्लोप नेगेटिव है, स्लोप आपका नेगेटिव है. और कब जीरो होता है? जब ऐसा होगा. अगर ऐसा आपका ग्राफ है तो यहां पर एंगल क्या है? एंगल जीरो एंगल बनाता है. तो tan जीरो क्या है? sin जीरो बाय cos जीरो. सो 0/1 विच इज 0. यहां पर आपका जीरो है, यहां पर आपका इनफाइनाइट है. ठीक है? यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है. समझ गए? मतलब यहां पर इनफाइनाइट है, अगर ऐसा आ गया तो पॉजिटिव है लेकिन कम है, लेकिन यहां आ गया तो नेगेटिव है. क्लियर? यस सर। देविका, क्लियर? Yes, sir. So basically, if you have a function x plus 1, तो उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. क्यों? क्योंकि x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब x का चेंजेस होने से y का चेंज हो रहा है, x चेंज होने से y का चेंज हो रहा है. अगर x में 2 डाला तो y क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ठीक है? अगर x का वैल्यू 3 डालूंगा तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा. मतलब जो दूसरे को अफेक्ट करता है वो हो गया, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है. ठीक है? तो योर dy by dx is nothing but the rate of change of
your independent dependent variable with respect to independent variable, and that is what, क्या होगा, इसका सेम रहेगा, इसका स्लोप क्या कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1। हम लोग सीखेंगे फॉर्मूला वाइज। अभी तक कोई डाउट है? No, नहीं sir. ओके, sir, y Yes. is equal to x plus 1. This is also given, right? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यस। Okay. तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट, कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है ना, कांस्टेंट कभी चेंज होता है क्या, नहीं होता है, तो उसका जीरो हो गया, और इसका क्या होगा, आंसर होगा 1। 1. हम लोग सीखेंगे, विल कम बैक टू दैट। अभी तक कोई डाउट है क्या, आप मुझे बताओ। नहीं sir. देविका, कोई डाउट? No, sir. No, sir. सो लेट अस नो द फर्स्ट देखो, ये आपका मैथ्स में आएगा, ठीक है ना, आई थिंक, बट सरप्राइजिंग यार, ये आपको नहीं पढ़ाया गया सिद्धि, मैथ्स में नहीं पढ़ाया गया, जो अब तक आपने पढ़ा है वो या फॉर्मूला वगैरह नहीं पढ़ाया गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, पढ़ाया है सर। तो फिर आप बोल लो नहीं पढ़े हो। वो मतलब नॉर्मली डिफरेंशिएशन का लाइक x रेज टू x प्लस 1 वो वाला फॉर्मूला पता है। तो वही तो है, ये वाला थियोरी है, ये वाला थियोरी हाँ। है आपको समझने के लिए। डिफरेंशिएट क्या होता है, डिफरेंशिएट हम लोग तोड़ते हैं बेसिकली। अगर मैं बोलूंगा कि एक ये है डिफरेंशिएट, मतलब इसको तोड़ना कहते हैं, द स्मॉलेस्ट पावर। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जोड़ना, जोड़ना, इसको जोड़ते हैं। इंटीग्रेट मतलब टुगेदर, गेट इट क्लोज। डिफरेंशिएट मतलब तोड़ो, इसीलिए बोलते हैं ये तोड़ना होता है, ये जोड़ना होता है। एक 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 ब्रेड है, उसको आप तोड़ते हो, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएट। अगर मैं स्लाइसेस को टुगेदर ले आया, ऑल स्लाइसेस को, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये थियरी है, ठीक है। सर डिफरेंशिएट या मतलब उसका यूज क्या है? वही तो बोल रहा, टू नॉर्मली फॉर यू फिजिक्स इट इज ओनली रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज, द स्लोप, एंड दैट इज फॉर ऑल। दैट पॉइंट, सॉरी, फॉर दैट पॉइंट राइट? नॉट फॉर दैट पॉइंट, इट कैन बी एनीथिंग। नो, आई टोल्ड यू, इसके लिए भी हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। क्यों? इसका क्या था, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, राइट। तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप बेसिकली ये वाला है 45 डिग्री। तो आपको पता है tan 45 का वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये स्लोप 1 है। अभी अगर आप फॉर्मूले से करोगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूले में भी आपको 1 आया ना, हाँ। तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका मतलब हम लोग करेक्ट है। बट ये तो पॉइंट नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका स्लोप कांस्टेंट है। सो डिफरेंशिएशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट एनी टाइप ऑफ फंक्शन। इट कैन बी ए स्ट्रेट फंक्शन, और इट कैन बी ए दिस इज कॉल्ड ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इट कैन बी ए 1/x फंक्शन, एंड इट कैन बी एनीथिंग। ओके। ओके, यस सर। okay, now coming back to the formulas, क्योंकि basically differential integration are in 12th it is a big chapter, but for you it is required as a tool. So just to understand, because when you study motion in straight line or motion in plane 11th 12th, most of the concepts are differential integration are important. Even your LCR AC circuit में भी important है, हमने पढ़ा था, ठीक है। You will study that. Devika, you will study later on. Siddhi, you already studied, okay. Yes sir. So first equation, your first formula is d by dx of x to the power n. Y is equal to x to the power n. तो dy by dx क्या होगा, d of dx of x to the power n. Y की जगह का आप डालोगे x to the power n, इसका वैल्यू क्या होगा, n to the power x to the power n minus 1. ये पहला फॉर्मूला है, राइट इट डाउन। d by dx of x to the power n is equal to nx to the power n minus 1. क्लियर? Yes, Yes sir. sir. एग्जाम्पल करते हैं। लेट से योर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ
n क्या है, 2 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2x टू द पावर 2 माइनस 1, तो 2x टू द पावर 1, आंसर क्या होगा 2x। क्लियर, Yes. समझ में आया। Yes. Yes, sir. और एक करो x टू द पावर x टू द पावर 3, इसका क्या होगा, करो तो dy बाई dx क्या होगा, 3x square. 3x 3 माइनस 1 3 minus 1. x 3x स्क्वायर। square. क्लियर, 3x square. ठीक है, Yes, sir. ये सीख गया। तो अभी मैं बोलूंगा d, अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, y टू द पावर x प्लस 1, तो इसका क्या है, जब भी ऐसा रहता है dy बाई डी एक्स, तो आप सेपरेटली करो, इसको सेपरेट करो, इसको सेपरेट करो, तो ये क्या हुआ dx बाई डी एक्स, और ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ 1। तो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, तो d बाय डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, Yes, sir. तो कोई भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, मतलब अगर ये फॉर्म में लिखा हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 2 या 3x प्लस 3 या हाफ x प्लस 2, कुछ भी होगा, तो इसका वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट ही आएगा। इसका क्या आएगा, इसका करोगे तो आंसर होगा 2, इसका करोगे तो आंसर होगा 3, इसका करोगे तो आंसर होगा हाफ। तो ये सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज। तो कभी भी याद रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। क्लियर, Yes, sir. देविका Yes, sir. नोट कर रहे हो ना, Yes. हाँ सर. क्योंकि हमको फटाफट खत्म करना है, इसलिए मैं आई डोंट वांट टू पेंड इट। तो d बाई डी एक्स, अगर y इज इक्वल टू 5x टू द पावर q, इसका क्या होगा, करो करो, देविका करो, सिद्धि आंसर क्या होगा, 15x raised to 14. 15x Raised to 14. 14। नहीं 15x square. ओके, देविका देखो, कुछ नहीं है, ये 5 एक मल्टीप्लाइड है, तो 5 को भूल जाओ, तो dy बाई डी एक्स क्या करोगे, 5 को बाहर ले आओ, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो 5 को रखो, इसका क्या होगा आपको पता है, इसका होगा 3x स्क्वायर, करेक्ट, Yes, sir. तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और एक करो, y इज इक्वल टू 2 बाई 3 x टू द पावर 4, सॉरी 3, इसका करो, Sir, बोलो. Should I say the answer? या टेल, 2x square. ओके देविका, आया आंसर, देविका आया, No, sir. क्यों, इतना इजी तो है, ये वाला इसको बाहर ले लो, इसको करो, इसका तो ऑलरेडी हमने किया ना, इसको बाहर ले लो, छोड़ दो, इसका अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब तो हमने कर दिया है, क्या वैल्यू आया, यह आया, तो 2/3 इंटू 3x स्क्वायर, 3 कट गया, आंसर होगा 2x स्क्वायर।
आया समझ में? यस सर, मैं कोड डाल के कर रही थी इसलिए मैं पूरा। हाँ, कभी भी मल्टीप्लाइड होगा तो उसको भूल जाओ, इसको कुछ करने का ही नहीं है, बाहर ले लो। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो। और एक करो फटाफट, ये वाला करो, जल्दी करो, देख के बता सकते हो आंसर। बोलूं सर? हाँ बोलो। 5x³ वेरी गुड। सीधी तुम बड़ी हो ना तो तुमको आता है, वो छोटी है। देविका जी हाँ सर। यस सर, आई एम। या आई नो आई नो। इजी है, कुछ नहीं है। तो ये 5/4 को बाहर रख लो, ये हो जाएगा 4x3, 4x3 आ जाएगा। यस, 4 4 कट गया, कट 5x। ठीक है ना? तो ये टाइप ऑफ Yes. प्रॉब्लम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू डू। क्लियर? सो नाउ वी विल Yes. now we will go ahead with the various formulas. तो नेक्स्ट है d by dx ऑफ sin x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x। ठीक है? d by dx ऑफ cos x, इसका क्या होगा? माइनस sin x। d by dx of tan x is equal to sec square x। d by dx of cot x is equal to minus cosec square x। d by dx of sec x is equal to sec x tan x। d by dx of cosec x is equal to minus cosec x cot x। d by dx of e to the power x is e to the power x, and d by dx of ln x is equal to 1 by x। इतना लिख लो, पहले लिख लो। Then we will try to solve some questions। सर हम्म, सर इसमें ई क्या है? e is एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e का वैल्यू क्या रहता है पता है? e is equal to 2.3 कुछ रहता है, ओके। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसका ग्राफ बेसिकली ऐसा रहता है, x 1 आएगा तो ये है। एक मिनट ना, हेलो आज्ञा भल अच्छी बतियाबू? मु तो कहली मैंने बापा को मैंने भाई मैंने मुझे ककई डाकिबे हो। नाई से पीसा आछंती तो गोटे अकाउंट खोलियार थिला, आपन टे खाली आसपरिबे? बाबा केतो आसबे फोन करछु ओके बेटी। लिख लिया? यस सर। देविका लिखा? यस सर। सिद्धि? यस सर। क्यों? सर हो गया लिखिए। हो गया ना? तो ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बेसिकली सब फिजिक्स में सब यूज नहीं होता है, और फिजिक्स में उतना कॉम्प्लिकेट नहीं आता, तो हाँ, खाली लिख लो। अभी देखो ये मैथ्स में आएगा, तो अभी पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। हम लोग के लिए बेसिकली कॉन्सेप्ट जानना था और सीखना था कि क्या है। ये फॉर्मूलाज आपने लिखा, जैसे जैसे फिजिक्स में आता रहेगा वैसे वैसे हम लोग इसका पढ़ते रहेंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर बोलो। वो 2.3 कांस्टेंट है। या e टू द पावर 1 कांस्टेंट है, ओके लेकिन हाँ, e टू तो द पावर x, अगर मैं बोलूंगा y इज e टू द पावर x, अगर x का वैल्यू 1 आएगा तो y का वैल्यू आएगा 2.3, x का वैल्यू 2 आएगा तो y का वैल्यू टू द पावर तो स्क्वायर। 4.6 नहीं हो उसका स्क्वायर। ओके करेक्ट ना? यस।
ठीक है ना? यस सर, इट्स बोलते एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। यस सर, लेकिन ये अलग है हाँ। और एक रहता है 10e4, इसका मतलब क्या है? 10⁴, ये अलग है, ओके ये अलग है। कैपिटल या ये इसका मतलब है 10⁴। अगर मैं बोलूँगा 10e-4 तो इसका मतलब है 10⁻⁻4। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये ई है, इसका ई, ये कांस्टेंट है पाई की तरह। यस सर, पाई क्या है? पाई इज 3.14, करेक्ट? 0.14, यस सर, What kind of decimal it is? It is a non-terminating, non-repeating decimal. यस, पता है? Non-terminating, non-repeating decimal. it will never end It will and never end. It will it never will never terminate. repeat. It will never repeat. So numbers are Yes. like 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 9, 3. So it will never repeat. Some decimals will repeat like how? Like 63.99, 199, 199. So this is what? Non-terminating, repeating. Yes, So non-terminating, non-repeating, non-terminating, repeating, and what is terminating? खत्म। terminating में खत्म ना, कुछ नहीं है। हाँ मतलब हाँ 63.12 कुछ नहीं है। हाँ, तो ये आपका इरेशनल नंबर रहता है। क्या नंबर रहता है? exactly. इरेशनल नंबर। ओके, Yes, क्लियर? तो अभी हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, एक मिनट। ओके, नेक्स्ट विल कम टू इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन पढ़ाने से पहले देखो, स्कूल में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया होगा, बट आई नेवर डू दैट। आई विल ऑलवेज टीच द बेसिक फंडा। तो इंटीग्रेशन मैंने क्या बोला? डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है इंटीग्रेशन। मतलब आपने अगर किसी को डिफरेंशिएट किया, हमारा क्या था? y इज इक्वल टू एक्स था ना। तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरा वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा, राइट? तो 1 को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो जब इंटीग्रेट करते हैं ऐसे 1 dx, उसका वैल्यू x आया। तो पहले x था ना अपना, अभी भी x आया। मतलब क्या है? जो डिफरेंशिएट हुआ उसको हम लोग अगर इंटीग्रेट करते हैं, यू गेट बैक द ओरिजिनल फंक्शन। और एक करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो dy बाई dx क्या है? 2x। yes, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। तो dy इज इक्वल टू 2x dx, खाली मल्टीप्लाई किया। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये dy हो जाएगा, छोटा छोटा y बन के y हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2x क्या हो जाएगा? इसका एक फॉर्मूला है, x टू द पावर का इंटीग्रेशन है x n+1 बाई n+1। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू x 1+1 बाई 1+1, ठीक है? तो 2 ये हो जाएगा x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल, आंसर है एक्स स्क्वायर। मैं खाली दिखा रहा हूं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन, और कुछ नहीं। अभी हम लोग पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, yes, sir. just write down if you differentiate any function, if you differentiate any function, let's say the function is y is equal to f of x। तो अगर मैं नॉर्मली हम लोग y डैश बोलते हैं dy बाई dx को, तो y डैश क्या है? f डैश x। अगर मैं y डैश को इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, y डैश को इंटीग्रेट करूंगा, इसका मतलब f डैश x को इंटीग्रेट करूंगा, मेरे को पुराना फंक्शन ही मिलेगा जो मेरा ये था। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट ऑफ, लिखा? लिखा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी हम लोग एक समझते हैं। मान लो एक इधर एक है, एक रेक्टेंगल है और यहाँ का रेक्टेंगल है। मान लो ये वैल्यू है 10, ये वैल्यू है 5। अगर मैं बोलूँगा इसका एरिया निकालो, तो एरिया कितना रहेगा बताओ?
50. 50. Yes. कौन बोला? कौन बोला? Sir, me, Siddhi. देविका क्या हुआ, आपको नहीं आ रहा है क्या एरिया निकालने का? इसका ब्रेड्थ है 50, लेंथ है 10, तो एरिया क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट? लेंथ इंटू ब्रेड 10 इंटू 550. तो इसका बहुत इजी से आपने बता दिया। बट अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक फिगर है जो ऐसा दिखता है, इसका कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? बता, निकाल सकते हो? नहीं. नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये ना ही ये एक रेक्टेंगल है ना ही ट्रायंगल है, कुछ नहीं है, करेक्ट? Yes. So in this type of problems, there the application of integration comes into picture. तो इंटीग्रेशन क्या करते हैं हम लोग इसको, ये बेसिकली एक कर्व्ड है, हम लोग क्या करते हैं इसको छोटा छोटा ट्रायंगल में काट देते हैं, छोटा छोटा रेक्टेंगल में काट देते हैं, ठीक है? अब जब छोटा छोटा काट देंगे तो कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है कि नहीं? ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, लेकिन मेरे को अगर मैं निकालूंगा अप्रोक्सीमेशन में, मेरे को इसका ही इसका एरिया निकाल पाऊंगा मैं, सिमिलरली इसका निकाल पाऊंगा मैं, इसका निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैं कंसिडर करके इसको रेक्टेंगल इसको निकाल पाऊंगा। बट मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि एवरी टाइम ए पार्ट ऑफ द पोर्शन इज नॉट कैलकुलेटेड, यस और नो? मतलब मेरे को ये क्या हो रहा है, मैं नहीं निकाल पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है। देखो ये मेरा है, तो मैं इसको मैं रेक्टेंगल कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं इसका एरिया तो निकाल पाऊंगा, लेकिन इसका एरिया क्या हो रहा है, मैं नहीं निकाल पा रहा हूं। तो ऐसे मेरे को सब जगह पे हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. So this is a problem. So this type of issues when come into picture, we have integration which will do the job, which will calculate the area of such type of graph. Only thing that we should know, what is this equation? अगर ये equation जो भी हुआ x cube plus 1 जो भी हुआ, तो ये इंटीग्रेशन करके उसका एरिया निकाल देगा, ठीक है? तो इंटीग्रेशन इज फॉर यूजफुल। तो व्हाट डज इंटीग्रेशन गिव्स? एरिया। क्या देता है? Area. एंड व्हाट डज डिफरेंशिएशन गिव्स? Slope. वेरी गुड, इतना ही आपको याद रखना है फिजिक्स के लिए। क्लियर? Yes, sir. सिद्धि क्लियर? Yes, sir. Now there are two types of integrals. One is definite integral, one is indefinite integral. ठीक है? डेफिनेट इंटीग्रल, वन इज इनडेफिनाइट इंटीग्रल। ओके, तो अभी हम लोग पहला फॉर्मूला लेते हैं, क्या? 1 मिनट। राजेश, टेल मी। Hello? या राजेश? Sir, I informed the Bhubaneswar branch manager also. I Yeah. shared your number Yeah. and I shared your address, sir. या आई गॉट ए कॉल, थैंक्स। Oh, okay, sir. Thank you. Okay, thank you. Thank you. तो आवर फर्स्ट फॉर्मूला इज x टू द पावर n। हमने क्या सीखा था? डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx कितना था देविका, कितना था? nx टू द पावर n-1. अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का अगर जो भी ये फंक्शन है वहां पर dx लिखना होता है, तो इसका वैल्यू क्या है? n x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है? Yes. ठीक है? अगर हमने अभी क्या सीखा था? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था? 2x था। अरे इसका Yes. डिफरेंशिएशन क्या है? 2x है Yes, ना? sir. तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे
2x dx। तो 2 बाहर है, बाहर को ले आओ। कभी भी इंटीग्रेशन डिफरेंशियल में अगर अगर कोई कांस्टेंट है उसको बाहर ले आओ, ठीक है। उसको बाहर ले आया, बचा क्या, x dx। तो यहां पर n क्या है, 1 है। यस सर। देविका n क्या है Yes, इधर, sir. 1 है। तो ये क्या हो Yes. जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, यस और नो। Yes. दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। X square by 2 to cancel. X आंसर क्या आया, अपना यही ओरिजिनल फंक्शन था ना। Yes, sir. यस सर। तो वही है, तो समझे कि क्या है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या है डिफरेंशिएशन का, ऑपोजिट। ऑपोजिट। तभी तो आया ना, तभी तो ये आया ना, नहीं तो ये नहीं आता। एक्स स्क्वायर को आपने डिफरेंशिएशन क्या 2x किया, तो 2x को आपने इंटीग्रेट किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर आया ना। यस सर। करेक्ट देविका, करेक्ट। Yes, sir. जो इक्वेशन, जो इंटीग्रेशन में इस यहां पर लिमिट नहीं रहेगा, जिसका वैल्यू आपका एक वेरिएबल आएगा, एक वेरिएबल है, करेक्ट ना, वेरिएबल है। अरे एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर की कुछ वैल्यू है क्या, कुछ नहीं है ना। नहीं सर। तो इसको बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, Indefinite integral. जहां पर ऐसे वेरिएबल आएंगे, कुछ भी आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ भी, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल किसको बोलते हैं, जहां पर अगर मैं बोलूंगा यहां पर मान लो एक्स डी एक्स है, और यहां पर बोलता हूं 0 to 1, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो पहले क्या करेंगे, इसका निकालने के लिए हम लोग पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, करेक्ट, करेक्ट। यस सर। Yes, sir. इसका लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट 0 to 1, यहां पर भी 0 to 1। तो क्या होगा, पहले इसको सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर बाय 2, उसके बाद माइनस 0 का सब्स्टिट्यूट करो, 0 स्क्वायर बाय 2। तो आंसर क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो आंसर होगा 1/2। तो ये सब इंटीग्रेशन में जहां पर वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं डेफिनाइट Definite integral. डेफिनाइट इंटीग्रल, इंटीग्रल इंटीग्रल Definite integral. इंटीग्रल, ओके। सर हाँ, सर बीच में हमेशा माइनस साइन ही आएगा, यस मतलब वन ऑलवेज स्क्वायर ऑलवेज, यस यस यस। ओके। जो भी हो, अगर 2 रहेगा इधर 1 रहेगा, कभी भी याद रखो ये जो वैल्यू है इससे छोटा रहेगा, लोअर लिमिट है ना, लोअर हाँ। लिमिट है या अपर लिमिट है। तो ऐसा नहीं होगा 3 1 नहीं करोगे, 1 और 3। यस। अगर 1 3 भी करोगे तो माइनस कर सकते हो। अगर लिमिट आप मान लो, देखो कैसा हुआ, देखो पहले हमने क्या बोला कि 0 to 1 था ना, हाँ। x dx, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/2 1/2 माइनस 0/2, करेक्ट। तो इसका वैल्यू 1/2। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा, मतलब 1 और इसको 0 करूंगा, तो मेरे को यहाँ माइनस साइन डालना है। क्यों, क्योंकि इसका मेरा आ गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डालूंगा 1 और 0, यहाँ पर माइनस डालूंगा, तो माइनस को भूल जाओ, तो माइनस बाहर है, तो 0 बाय, सॉरी ये 2 है ना, तो 0/2 माइनस 1/2। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -1/2 आएगा। यस। एक्चुअल आंसर 1/2 आना चाहिए, तब माइनस, तो माइनस माइनस 1। यस। तो अगर आप इसको इंटरचेंज करते हो लिमिट को, तो बाहर -1 आना आएगा, ओके सर। ठीक है, कोई डाउट। No, sir. तो आप ये लिखो, अगर मैं ए बी है, ये dx है, कुछ भी है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ b टू a। ये आपने पढ़ा था सिद्धि सिद्धि, सर ये नहीं पढ़ा था, इसी में ही डाउट था, तो आपसे पूछा। पढ़ा था, टीचर ने पढ़ाया था ये पढ़ा था, मतलब सिर्फ टीचर ने सिर्फ फॉर्मूले बताए थे।
जो इम्पोर्टेंट यूज होंगे, बट उसका कैसे डिराइव हुआ वो नहीं बताया था। तो मेरे जैसे नहीं पढ़ाया था ना, नहीं सर। तो बेटर है, चलेगा पढ़ाई। हाँ सर, इसीलिए कंफ्यूजन होता था कि अप्लाई कहाँ करना है। नहीं नहीं, अप्लाई वही समझ में आना है। तो अगर, हाँ। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था एरिया, तो मैं अगर बोलूंगा कि मेरे को एरिया चाहिए, मेरे को यहां तक एरिया चाहिए, मेरे को यहां तक एरिया चाहिए, इतना तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां तक एरिया मेरे को निकालना है, इसको नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए। तो ये लिमिट क्या है? 2 रहेगा, ये लिमिट 3 रहेगा, समझ रहे हो? तो ये लिमिट को और मान लो ये इक्वेशन जो है, मान लो एक्स क्यू है, तो इसका एरिया निकालने के लिए मेरे को पूरा नहीं चाहिए, मेरे को वो लिमिट को ही करना है। हम्म। तो ये इसका एरिया निकल जाएगा, मेरे को 2 से 3 तक एरिया निकल जाएगा। यस सर। अगर मैं पूरा करूंगा 0 to 10, तो ये सबका एरिया निकल जाएगा। समझ गए देविका? Yes, sir. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इज इट नॉट ब्यूटीफुल? यस सर। Okay, so let us, so this is the first which is very important, x to the power n का इंटीग्रेशन क्या होगा? n x to the power n plus 1 by n plus 1। तो मैं अगर x स्क्वायर रहेगा तो इट बी x2 plus 1 by 2 plus 1। yes, x to the power 3 का क्या रहेगा? x dx ऑलवेज लिखना, x3 by x4 by 4, करेक्ट? इजी है? यस सर। Yes, sir. Okay. नेक्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली मैंने बोला कोई एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोई एक कांस्टेंट है 2 है, उसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होगा? तो अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट 2dx लिखना, तो इसकी इंटीग्रेशन 2x होगा। लेकिन कभी भी ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है, उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, c आएगा, कुछ भी हो, x dx है, तो इसका आंसर होगा x स्क्वायर बाय 2, है ना? लेकिन उसके साथ एक c आएगा। कोई भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, जो भी उसका वैल्यू आए उसके साथ एक c लिखना, c। अगर डेफिनेट इंटीग्रल है, ये जरूरी नहीं है, यू डोंट हैव टू राइट इट। क्लियर? यस सर। Yes, sir. कोई भी इंडेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट जहां पर लिमिट्स नहीं है, तो वहां पर जो भी आपका वैल्यू आएगा, जो भी आपका इंटीग्रेशन आएगा, उसके साथ सी लिखोगे। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपका आंसर गलत है। क्लियर? Yes, sir. बट वो सी क्या डिनोट करता है? सी का क्या काम करता है? नॉर्मली सी इज ए, क्या मैं बताता हूं, जैसे अभी देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, करेक्ट? यस सर। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। हाँ। Yes. और y इज इक्वल टू एक्स है, इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। यस। मतलब दोनों फंक्शन का कैसे सेम हो सकता है? गजब है ना? हाँ। x प्लस 1 का भी 1 है, x का भी 1 है, ठीक है ना? तो हम लोग इसीलिए ये कांस्टेंट लिखते हैं। ये कांस्टेंट वही काम करता है। क्यों? अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या लिखा आएगा? x आएगा। लेकिन मेरे को तो x प्लस 1 चाहिए। हाँ। ये जो 1 है ये c है, तो इसीलिए हम लोग x प्लस c लिखते हैं। तो इसके लिए your c is 1, लेकिन इसके लिए your c is 0। आया समझ में? हाँ सर। कोई टीचर नहीं बोलता ये। हाँ। अंडरस्टूड? यस। सिमिलरली योर y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड y इक्वल टू x, यहाँ पर c क्या होगा? 2 है, 2। यहाँ पर c क्या है? 0 है। इसीलिए कोई भी इंटीग्रेशन होता है, वी ऑलवेज राइट ए कांस्टेंट c। क्लियर? Yes, sir. 100% ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। गुड। ऑब्वियसली मैं बोलूंगा नहीं, अगर मैं बोलूंगा ये दो इक्वेशन है,
अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो सेपरेट करना, मतलब इसको करना और इसको करना सेम है, डिफरेंशिएशन का भी सेम है। अगर मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो आप क्या करोगे, इसको सेपरेट करोगे, इसको सेपरेट करोगे, ऐड करोगे। इंटीग्रेशन पे भी वही लागू होता है। क्लियर? Yes, sir. लेकिन ऑलवेज उसके बाद सी डालना। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होगा, sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx is minus cos x plus c. Integration of sec square dx is equal to tan x plus c. Integration of cosec square dx minus cot x plus c. Integration of sec x tan x dx is equal to sec x plus c. Integration of cosec x cot x dx is equal to minus cosec x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स। मुझे बताओ ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? ई एक्स था एक्स का डिफरेंशिएशन, ई रेज़ टू, देखो देखो नोट्स देखो, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स था ना, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन भी ई एक्स आएगा। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज ln x। आपको याद है ln x का इंटीग्रेशन क्या था, 1/x था, हाँ तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x है, उल्टा सबका। देखो sin x का क्या था, cos x था, हाँ cos x का क्या है, sin x, करेक्ट। cos x का क्या था, माइनस sin x माइनस था, साइन, तो sin x का क्या है, माइनस cos x। तो कुछ नहीं है, उल्टा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। दिस फॉर्मूला हैज टू बी क्या, रट्टा मारने का, हाँ सर, ठीक है। तो इसके साथ और आपको प्रॉब्लम्स करने हैं, जो बेसिक्स प्रॉब्लम करने हैं, आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा। यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। यस सर, क्लियर देविका? Yes, sir. सो इसके साथ हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कंप्लीट किया। बेसिकली वी आर नॉट डूइंग लाइक मैथ्स, बिकॉज मैथ्स में क्या है, इसमें हम लोग को सीखना है, क्योंकि हम लोग को बेसिक प्रॉब्लम सीख रहे हैं, हमको इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। एप्लीकेशन पढ़ना है और कुछ नहीं। बेसिकली अगेन इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, क्या देता है इंटीग्रेशन, एरिया, और डिफरेंशिएशन क्या देता है, Slope. इतना ही आपको याद रखना है, और बाकी तो फॉर्मूलेस यूज करने हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या है और डिफरेंट इंटीग्रल क्या है, इतना आपको याद रखोगे तो बाकी सब कुछ सही होगा। फॉर्मूलेस तो आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो तभी आएगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं आएगा, बट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। तुमको कोई पूछेगा कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, यू व्हाट इज द आई नो फॉर्मूला, नो, इट कैन नॉट बी लाइक दैट। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एप्लीकेशन, क्या देता है। इंटीग्रेशन इज द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर कोई स्लोप दिया, कोई एरिया दिया, दैट्स ऑल। Great, right? यस सर, Yes, sir. Next class is on Friday. Friday at, I will let you know the timings, okay? Okay, Can sir. we have morning Yeah, sir. 9 a.m.? Siddhi, सर आई हैव नो लेक्चर, is it a live lecture or recorded lecture? लाइव लेक्चर, But can't you manage? Live lecture means what? Those will be recorded, no? You can easily get it, right? नो सर, Why? Arey, somebody is putting live, the recording is not available. नो सर, दे डोंट रिकॉर्ड द, Huh? Sorry, what is it?
They do not record the lecture. Okay, I will let you know the timing then. Yes, sir. Sir, Okay. please try to keep the class evening. Yeah, because I also have to see because I have some other assignments. So let me see Yes, what I can sir. do. Okay, Yes, sir. fine. Thank you. Thank you, sir. You'll get the recording of the session. Okay. Yes, Okay, sir. sir. Yeah. Bye. Thank you, sir. Bye. Bye.